Bismillahirrahmanirrahim. Students, today starting with a new concept, that is exception handling, which is a totally new paradigm in case of OOP, and basically it is related to the problem that arises while handling certain errors or bugs in a program. Now, starting with the concept of exceptions, exception is any abnormal behavior, or you may call it a runtime error, right? For example, in case of a division by 0, that is going to result in an infinite value that is not representable, so we call it an abnormal behavior or a runtime error. So all such type of errors or all such type of situations that may arise during the execution of a program are known as exceptions. Another example of that can be an invalid email address. While making an email address on a certain website, or you are going to make use of a certain tool, then there are certain parameters, there are certain rules that you people have to follow while making a email address, or in fact there are certain rules while following a password. So if you are not following that rules, then the program or the coding behind that should generate a message, an alert that something has been done wrong. So the thing that is being done wrong is known as exception. And how to cope with that problem, how to make certain measurements while such abnormal behavior occurs or such runtime error occurs, that is known as exception handling, right? So exceptions are offbeat situation in your program where your program should be ready to handle it with an appropriate response. That is, for example, if you are going to make use of an invalid email address, then you people have seen that there are messages generated that the email address is invalid or the password is invalid, right? Similarly, if you are going to do some sort of mathematical operations, like I have given example of a division by 0, then there should be a proper intimation that something has went wrong that needs to be reseen, or if that needs to be rechecked. So all these things that deals with exceptions and how to cater with that exception, this is known as exception handling. Now the main thing here is that once an exception is being generated, how the program will handle a wrong input other than a normal behavior, because एक certain parameters में एक certain sequence में अगर आपका program run हो रहा है for different values for different inputs, then it is well understood. But कोई ऐसी situation आए कि जहाँ पे other than the normal behavior कोई wrong input होगी थी, कोई mishandling होगी थी, कोई wrong value आ गई थी, then our program should be quite smart enough that it should be able to handle such situations, or it should be able to respond to such situations, right? So all those programs that have a capability to handle an exception, that have the ability to handle some abnormality, they are called robust programs, right? They can respond well to some unwanted situations, right? So we can handle this exception handling by making use of a built-in approach that is being provided in the C++ language. But other than that, we can also handle the exception in another way, but a smarter way, a professional approach is to make use of built-in exceptional handling that is being given by C++, right? आप exception को खुद से किसी और तरीके से handle करना चाहें, you can do it, but maybe it will not be applicable in every scenario, and it may not be a professional approach. So एक professional method एक exception को handle करने का और फिर उसके against measurements लेने का, that is being provided by the C++. So as we have seen that an exception is a problem that arises during the execution of a program. So a C++ exception is a response to an exceptional circumstance. यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या है? एक ऐसा सिनेरियो जहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक? एंड वो कब अराइज होती है? डेफिनेटली वाइल द प्रोग्राम इज बीइंग रन, और जिसकी मैंने एक एग्जांपल दी कि सच एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0. सो एक्सेप्शंस प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अनदर, राइट? यानी कि बैकग्राउंड में जब आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे होते हैं
तो वो पार्ट, वो चंक ऑफ द कोड जहां वो प्रॉब्लम अराइज हुई थी या कोई प्रॉब्लम अराइज होने का चांस था, आप वहां से कंट्रोल किसी और एरिया ऑफ द कोड में ट्रांसफर कर देते हैं. जैसे इसके एक कॉमन से एग्जांपल अभी दे रही हूँ. अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ अ बिल्ट इन अप्रोच इन C++. जैसे आपने अगर डिवीजन बाय जीरो की है तो वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट करेगा, या वो कुछ ऐसे मेजरमेंट्स ले कि वो डिवीजन बाय जीरो की पॉसिबिलिटी ना रहे, या आपने कोई इनवैलिड ईमेल एड्रेस क्रिएट करने की कोशिश की, आपने इनवैलिड पासवर्ड एंटर किया, तो एक प्रॉपर हैंडलिंग हो, एक प्रॉपर एक अप्रोच हो जिसके थ्रू वो आपको इंटीमेट कर दे और दोबारा से आपको उस पोजीशन पे ले आए कि आप री इनपुट कर सकें. ठीक. सो ऑल दिस थिंग इज नोन एज द हैंडलिंग, एंड बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अनदर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग करते वक्त हम बेसिकली कोड को ही ट्रांसफर ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कोड के कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं. नाउ in case of C++, which has provided us a professional exception handling approach in terms of a built-in approach, तो वहां पे हम 3 basic keywords use करते हैं while handling an exception. First keyword is try, second one is catch, and the third one is throw. ठीक. स्टार्ट करेंगे वन बाय वन हर कीवर्ड से, में उसकी यूटिलिटी क्या है और उसके अगेंस्ट हम क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं. Now starting with the first keyword, that is called throw, right? I am just going to go through these things and then I will explain each term one by one. A program throws an exception when a problem shows up that is being done by a throw keyword, right? यानी आपने एक एक्सेप्शन जनरेट हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको थ्रो आप करवाते हैं. उस केस में क्या होता है कि बेसिकली आप उसको मतलब एक तरह से एक्सेप्शन को रिमूव करने की कोशिश करें. दैट थिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड. कैच, इन दैट केस अ प्रोग्राम कैचेज एन एक्सेप्शन with an exceptional handler at the place in a program where you want to handle the problem, and basically the keyword that is being catching that exception, that is coping with that exception, that is known as catch keyword. Try block identifies a block of code for which particular exceptions will be activated, and it is followed by one or more catch blocks, right? So let me explain it in a detail that how we are going to handle an exception. सबसे पहले वो पार्ट ऑफ द कोड, वो एरिया, वो चंक ऑफ द कोड जहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी, किसी प्रॉब्लम, कोई एम्बिग्युटी आने का चांस है, उस पार्ट ऑफ द कोड को हम हमेशा रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर. ठीक. ट्राई के कीवर्ड के साथ हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस पूरे एरिया को हम कहते हैं ट्राई ब्लॉक, राइट? ट्राई ब्लॉक विच इज बीइंग प्रीमिसाइज्ड बाय पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स. ट्राई ब्लॉक के अंदर वो पार्ट ऑफ द कोड रखा जाता है जिसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन आ सकती है. ठीक. तो इस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को इनफैक्ट मॉनिटर किया जाता है. ठीक. यानी आप ट्राई कर रहे होते हैं कि वेदर देयर इज सम एक्सेप्शन हेयर और नॉट. इफ नॉट देन इट इज गोइंग टू मूव इन अ नॉर्मल मैनर. हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इट मीन्स उस ट्राई ब्लॉक ने कुछ ना कुछ एक्सेप्शन फाइंड की है, राइट? ट्राई के बाद आ जाता है थ्रो. थ्रो क्या है कि इफ एक्सेप्शन अकर्स, यानी कोई एक्सेप्शन आई है तो इस थ्रो कीवर्ड ने काम करना है, राइट? नहीं आई तो डेफिनेटली उसने काम नहीं करना. सो if exception occurs, in order to throw it out, in order to handle with it, we are going to make use of throw keyword. ठीक. इनफैक्ट आप यूं समझ लें कि थ्रो कीवर्ड आपको उस एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ अकर से बाहर निकाल देता है कि जैसे एक्सेप्शन आती है उसको थ्रो करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है. ठीक. अच्छा, आपने एक बात है कि पहली ट्राई ब्लॉक ने क्या किया, एक्सेप्शन डिटेक्ट की, यानी एक्सेप्शन आई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी. थ्रो ने क्या किया, उसको फेंका, बाहर निकाल दिया. बट
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसको, ठीक है, आपने कोड से तो बाहर निकाल दिया, ट्राई ब्लॉक से उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसको हैंडल भी तो करना है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकालना है. तो वो सोल्यूशन कौन निकालता है? वो कैच निकालता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू कोप विद दैट एक्सेप्शन वी विल यूज कैच इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट इशू. ठीक है, तो कैच का भी अपना एक ब्लॉक होता है और बिल्कुल ये फंक्शन की तरह का इसका सिंटेक्स होता है, बिल्कुल उस तरीके से ये बनता है. नाउ कैच के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सेप्शन की क्या प्रोसेसिंग करनी है, उसके साथ कैसे केटर करना है, दैट इज बीइंग रिटन इन द कैच ब्लॉक. ठीक, एंड जस्ट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक, यानी जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म होता है, देयर मस्ट बी अ कैच ब्लॉक. दैट इज ट्राई एंड कैच, दे गो साइड बाय साइड. ठीक, नाउ इस चीज को इन डिटेल समझने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एंड बिफोर दैट लेट मी एलैबोरेट अ जनरलाइज्ड सिंटेक्स ऑफ इट. राइट, okay, the syntax is that first comes the try keyword, and here with the help of curly brackets you are going to premisize the try block. यानी इस एरिया को हम कहेंगे try block. ठीक, अच्छा जी, try block के बाद आपके पास बिल्कुल देखिए जहां पे try block खत्म हुआ, just after that there is a catch keyword, राइट? और इनफैक्ट जैसे मैंने भी बोला था कि कैच का सिंटेक्स दैट इज क्वाइट सिमिलर टू अ फंक्शन. जिस तरह हम आप समझ लें कि यहाँ पे फंक्शन का नाम कैच है और वो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेता है आपसे, ठीक, विद इन द पैरेंथेसिस. सिमिलरली यू कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स फॉर मल्टीपल एक्सेप्शंस. यानी अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे गए कोड में मुख्तलिफ किस्म की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो हर एक डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, उसको उसके साथ केटर करने के लिए, कोप अप करने के लिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज करते हैं. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाली एक्सेप्शन ने किस वाले कैच के साथ जाना है? उसके साथ हम उसका एक नंबर या नेम एसोसिएट कर देते हैं. ठीक, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैच के अंदर जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें एक्सेप्शन नेम लिखा हुआ है. तो जिसका पैरामीटर मैच करेगा, वो चाहे E1 है, E2 है या EN है, तो वो उसी कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा. ठीक, सो लेट मी रिपीट इट अगेन. फर्स्ट कम्स द ट्राई ब्लॉक, जिसके अंदर वो पार्ट ऑफ द कोड लिखा जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन प्रॉब्लम आ सकती है. जस्ट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक देयर शुड बी द कैच. ठीक, अगर आप नहीं लिखते एरर जनरेट करेगा. सो जैसे ही वहां पे कैच कीवर्ड आएगा, उस केस में आप कैच का सिंटेक्स क्या है? बिल्कुल फंक्शन जैसा है, यानी कैच फंक्शन का नेम हो गया और साथ उसके आ जाएंगे पैरामीटर्स. और इनफैक्ट वो सिंगल पैरामीटर ही मोस्ट ऑफ द केसेस में लेता है. अब अगर आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आपने बनाए हैं, तो आपको किस सूरत में बनाने पड़ेंगे? जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस जनरेट होने का चांस है, क्योंकि हर एक्सेप्शन डिफरेंट तरीके से हैंडल होगी, राइट? हर एक्सेप्शन के अगेंस्ट डिफरेंट तरीके का कोड रन होगा, और वो कोड कहाँ लिखा होगा? वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा होगा. ठीक, तो जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन केस ऑफ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कि उसने किस कैच ब्लॉक में जाना है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स पैरामीटर. यानी हम डिफरेंट पैरामीटर्स दे देंगे, कोई नाम दे देंगे, जिसके भी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, तो उसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल अगेंस्ट इट. I am just going to give you a very basic concept of exception handling, जिससे आपको जस्ट एक सिंटेक्स का ओवरव्यू हो जाएगा, आपको सिंटेक्स का आइडिया हो जाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली की कैसे जाती है. ठीक, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ कीवर्ड, प्रोग्राम लिखते हैं मेन. लेट मी पुट इट हियर. यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रही हूँ ट्राई ब्लॉक, और देखिए ट्राई के फौरन बाद मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर. यहाँ पे समझे मैं एक सी आउट, चले एक मिनट, यहाँ पे हम दे देते हैं बिफोर द ट्राई ब्लॉक सी आउट स्टेटमेंट एक दे देते हैं, से वेलकम, राइट, और एंड दे देते हैं. ठीक, अच्छा, ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट स्टेटमेंट in try,
और यहाँ पे मैं ट्राई के अंदर लिख रही हूँ थ्रो। याद रखिएगा कि हमेशा आप थ्रो का कीवर्ड जो यूज करते हैं वो ट्राई के अंदर ही यूज करते हैं। क्यों ट्राई के अंदर यूज करते हैं? क्योंकि ट्राई के अंदर वो कोड लिखा हुआ है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है, जैसे ही वो प्रॉब्लम आनी है उसको थ्रो करवाना है, राइट। और थ्रो आपका कंट्रोल कहां लेके चला जाता है? कैच पे लेके चला जाता है, ठीक। सो थ्रो एक तरह से आपको इंडिकेट कर देता है, इट मूव्स यू आउट ऑफ द ब्लॉक, आउट ऑफ द ट्राई ब्लॉक, एंड इट इज गोइंग टू गिव द कंट्रोल टू एनी कैच ब्लॉक, राइट। अच्छा, थ्रो के बाद मैं लिख रही हूं नंबर 10। आफ्टर दिस कीवर्ड थ्रो आप कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट। इट कैन बी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, एनी स्ट्रिंग, बट दैट शुड बी अ कांस्टेंट। वेरिएबल नहीं हो सकता, यानी आप थ्रो ए नहीं लिख सकते, आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, कांस्टेंट देना है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ और यहां पे मैं लिख रही हूं कैच। Okay, let me write it here. Throw 10, right? अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और इधर हम लिख देते हैं कैच, कीवर्ड है, ठीक। अब देखें थ्रो ने किस किस्म की वैल्यू भेजी है? इंटीजर टाइप वैल्यू भेजी है। वैल्यू क्या है उसकी? 10। तो मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर टाइप का ही लेना होगा, ठीक। अब जस्ट लाइक अ फंक्शन, मैंने उसका एक नेम लिखा, उसके पैरामीटर लिखे और साथ ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका कैच ब्लॉक, ठीक। इसमें मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एक्सेप्शन हैंडल्ड या एक्सेप्शन नंबर लिख देते हैं हम, और ई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, ठीक। अब याद रखिएगा कि जैसे ही थ्रो 10 लिखा, कंट्रोल यहाँ पे इधर से इस जगह पे आएगा, ठीक। और इनफैक्ट ये वैल्यू 10 जो है वो किसको असाइन होगी? ये ई को असाइन होगी, राइट। दिस वैल्यू इज बीइंग गिवन टू ई, राइट। सो लेट मी राइट द वैल्यू हियर, और उसके बाद यहाँ पे हम एक और सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं, से लास्ट लाइन, राइट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हाउ दिस प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले जब कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा तो पहली लाइन क्या प्रिंट होनी चाहिए? वेलकम, डेफिनेटली, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्राई ब्लॉक से, ना ही कैच ब्लॉक से। वंस इट हैज एंटर्ड द ट्राई ब्लॉक, ठीक। मैंने जस्ट एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने कोई यहाँ पर ऐसा कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं लिखी जिसमें कोई एक्सेप्शन इंडिकेट हो रही हो। मैंने जस्ट ट्राई के ब्लॉक के अंदर पहला स्टेटमेंट ही क्या लिख दिया है? थ्रो। सो जैसे ही कंट्रोल यहां पर आएगा, इट इज गोइंग टू मूव हियर, राइट। क्यों? क्योंकि थ्रो का काम क्या है कि वो स्ट्रेट अवे कंट्रोल भेज देता है कैच ब्लॉक में, ठीक। अब जिस तरह से मैंने भी स्लाइड्स में आपको बताया था कि आपने ये जो एक्सेप्शन नेम लिखा हुआ था, राइट, ये बेसिकली एसोसिएट था किसके साथ? उस नंबर के साथ, उस कांस्टेंट के साथ, द वन दैट इज बीइंग रिटन आफ्टर द थ्रो कीवर्ड, राइट। सो अगर थ्रो के बाद मैंने 10 लिखा हुआ है, इट मींस कि ये नंबर मैच हो रहा है किसके साथ? इस वैल्यू के साथ। अगर यहां एक और कैच ब्लॉक बना होता जो कि फ्लोटिंग पॉइंट आर्ग्यूमेंट ले रहा होता, तो डेफिनेटली ये थ्रो 10 कभी भी उस नंबर में नहीं जाता। अगर कोई और कैच ब्लॉक बना होता जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होती और आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट देते, तो डेफिनेटली वो उसके पास कभी भी थ्रो ना करता। सो थ्रो 10 इज बीइंग has given the control to that catch block which matches with the value, ठीक। 10 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो वो इंटीजर टाइप कैच के साथ ही जाकर वहां पे उसके साथ पैचअप करेगा, राइट। सो वंस द प्रोग्राम the throw statement is being executed, control will come here, e will be given the value 10,
and there inside the block of catch cout statement will be printed, that is exception number, and here you are going to have the value 10. After coming out of this catch block, it is going to print the last line. So let me compile the program and see what will be the output. So here you can see, let me relate it to the coding. First comes the welcome, then exception number 10, and finally it has printed last line. Now here you can see it has not printed this statement, that is cout in try, right? Why it has not printed that? Because within the try block, the moment you have done this, it is going to move the control to the catch statement, right? अगर ये इससे पहले लिखा होता तो डेफिनेटली वो इसको प्रिंट करता. Now let me do another thing. Say for example, if I may let me comment the catch block. Right? What will happen now? मैंने कैच ब्लॉक को कमेंट कर दिया है, ट्राई भी लिखा हुआ है, थ्रो भी लिखा हुआ है. Here you can see an error is being generated. क्या error generate हुआ है? Expected catch before cout. That is, इस ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक होना मस्ट है. ठीक. Similarly, let me do another thing. Let me comment the try block. Right? ट्राई को मैंने कमेंट कर दिया है, कैच अभी भी वहां पे है. Now you can see again an error is being generated, that is expected primary expression before catch. यानी there should be a try block before the catch statement. So the most important point here is that catch and try, they go side by side. You can have multiple catch blocks, but there should be a try statement. Try का होना must है. हाँ, और अगर आपने multiple catch blocks यूज किए हैं तो उस केस में they all should be in a sequence. यानी जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी बताया था, एक कैच ब्लॉक खत्म हो रहा है तो साथ ही दूसरा कैच ब्लॉक शुरू होगा, वो खत्म हो रहा है तो साथ ही तीसरा कैच ब्लॉक शुरू होगा. इन बिटवीन द कैच ब्लॉक्स आप कोई और कोड नहीं लिख सकते. राइट? सिमिलरली अगर आप ट्राई ब्लॉक भी नहीं लिखते, आप कैच ब्लॉक भी नहीं लिखते, आप सिर्फ थ्रो लिख देते हैं, इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एन एरर, बट दैट विल बी अनवांटेड और यूजलेस सिनेरियो. क्योंकि जब आपने कुछ ट्राई भी नहीं किया, यानी कोई एक्सेप्शन आपने चेक ही नहीं की, आपने कुछ कैच भी नहीं करवाना उसके अगेंस्ट, कोई कोप भी नहीं करना उसके साथ, देन दिस थ्रो इज बेसिकली गोइंग टू बी यूजलेस. सो in fact it is not going to generate an error generate नहीं करेगा, but वो एक useless scenario हो जाएगा where there was no exception, there was no handling and just a throw statement. Right? So this brings me to the end of the lecture. Do thoroughly go through these slides to have an overview of exception handling and the main concepts of try, catch and the throw. In the next lecture, we are going to study these concepts, and I am going to move it further ahead. That is elaborating the try concept, elaborating the catch, and elaborating the throw keywords. So, if you people have any questions, do let me know. Thank you.